Hello guys, welcome to the channel. In this lecture we will see ocean currents. Till now what we have seen, planetary winds. Okay, so this is very important part. These winds are responsible for the formation of ocean current. So we have seen this. Now what are the other factors which are responsible for ocean current? Okay, so first is planetary winds, second temperature, salinity, Coriolis force, islands. We will discuss each one by one. So first, we are not discussing planetary winds because we have seen it. We will see it by the example how it is affecting ocean current. Okay, now we are going to see temperature because it is a very short, salinity, Coriolis force, islands. First, we will cover short concepts. So let's start by temperature. Now, warm current flows towards pole. As you can see, warm current towards pole, equator to pole, and cold current towards equator, poles to equator. Okay, this we have seen. This is equator, and cold current will flow from cold, pole to equator, and warm current will flow equator to pole. So this is simple. Why is it? Let me tell you. Near equator, water is warm, so warm water will expand. This was initial condition. This is later on. This one. The warm water will expand and cold water near poles is cold, so cold water will squeeze like frozen as a ice. आइस की तरह वो पिघल जाएगा. ओ सॉरी, हिंदी में करते हैं, कुछ समझ में नहीं आया तो बताइए. वार्म वाटर एक्सपैंड हो जाएगा और कोल्ड वाटर स्क्वीज हो जाएगा, तो हमारे आइस पे पोलर रीजन में 90 डिग्री पे वो स्क्वीज हो जाएगा, बर्फ की तरह जम जाएगा और वार्म वाटर एक्सपैंड हो जाएगा. सो on equator water height is more than pole height, so due to gravity water will flow from equator to poles. This is known as warm current, and water flow from pole to equator is known as cold current. So this is all about temperature. Why temperature is responsible for ocean current, we have seen. Now we are going to talk about salinity. The high salinity, density also increase. So we can say high salinity is equal to high density. And if water is dense, अगर water की density ज़्यादा है, density को हिंदी में क्या कहते हैं, शायद घनत्व कहते हैं, I am not sure, please check it. Denser water, जो भारी water होगा वो नीचे जाएगा, it goes down. अगेन हाइट डिफरेंस, जहां पे मान लीजिए ये वाटर है, यहां पे सैलिनिटी कम है, लेस सैलिनिटी, यहां पे हाई सैलिनिटी है. अब जब यहां हाई सैलिनिटी है तो इस वाटर का ये हो जाएगा, क्योंकि ये डेंसर है, ये नीचे जाएगा, तो फिर से ग्रेविटेशनल फोर्स और फिर से फ्लो ये हो जाएगा. तो सैलिनिटी कैसे रेस्पॉन्सिबल है ये भी हमने देख लिया. कोरियोलिसिस कैसे रेस्पॉन्सिबल है, जैसे वो विंड्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो ऐसे ही ओशन करंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो हम फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं. अब आ जाते हैं आइलैंड्स के ऊपर. आइलैंड्स कैसे रेस्पॉन्सिबल है? ओशन करंट हिट द लैंड एंड स्प्लिट इन डिफरेंट डायरेक्शन. जैसे वो केरला के उस पे आई या तमिलनाडु पे आई, तो वो बाइफरकेट हो जाएगी, एक चली जाएगी ईस्टर्न साइड पे, एक चली जाएगी वेस्टर्न साइड पे. सो वी कैन से कोस्ट लाइन ऑल्सो अफेक्ट द ओशन करंट. लाइक दीज आर ओशन एंड दीज आर रिजेस. जो छोटे छोटे पहाड़ निकलते हुए देखे होंगे आपने, थाईलैंड और ये सब एरिया में बहुत सारे आपको मिलेंगे, मिड अटलांटिक में भी मिलेंगे, और कुछ नीचे होते हैं, तो इनको कहते हैं हम अबव सी लेवल और इनको बिलो सी लेवल रिजेस. सो दीज रिजेस आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर ओशन करंट डायरेक्शन. जैसे कोस्ट लाइन अफेक्ट करती है ऐसे ही रिजेस भी अफेक्ट करती है, बट बिलो सी लेवल रिजेस डज नॉट अफेक्ट मच
but above sea level which is hit and by the current bifurcate the water. Bifurcate मतलब दो डायरेक्शन में वो bifurcate कर देते हैं, water को तोड़ देते हैं. So this is all about how islands are responsible for ocean current, pyrolysis force, you know it, salinity, density, and temperature, cold current and warm current. Now main focus will be on the planetary winds. We have seen these all in a very greater detail here. ये सब आपने देख रखा है. तो आपने अगर अभी ये ड्रॉ नहीं किया है और जो हम अभी एग्जाम्पल से देखने जा रहे हैं, तो आप लिटरली, आई एम अगेन सेइंग, आप टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके सामने नहीं होगा. जो भी मैं एग्जाम्पल बताऊंगा वो बस आप समझने के लिए समझेंगे, या फिर फर्जी, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ वो आपको कैसे समझ में आएगा. तो पहले नोट डाउन कीजिए कॉपी पे और फिर आप जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ उनसे समझने की कोशिश की. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी planetary winds. And what is Gyre? We will see, we will come on this on later, but because it is somewhere related to the planetary winds also. अभी तक हमने क्या देखा? हमने सारे कॉन्सेप्ट देख लिए. अब हमें देखना है प्लेनेटरी विंड कैसे रेस्पॉन्सिबल है. तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, ऐसे मैप लगा लेते हैं. अभी हमको पता है ये हमारा इक्वेटर है और अप्रोक्स यहां पे हमारा 30 है. तो 32 इक्वेटर कौन सी विंड रहेगी हमारी, बताइए. तो 32 इक्वेटर हमारी कौन सी विंड रहेगी, ये देखिए, नॉर्थ ईस्ट विंड्स. नॉर्थ ईस्ट विंड रहेगी. तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे. हम यहां देखते हैं अंडर द influence of northeast trade wind, ये गई, we observe north Atlantic equatorial current. ये यहां पे भी आएगा. इसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट. और ये आके यहां गल्फ ऑफ फ्लोरिडा तक पहुंचेगी. कैसे वो साइकिल बनाता है, वो यहां टच होगा, अभी हमने ये देख ही लिया है, और वो यहां तक पहुंच जाएगा. अब ये हमारा अप्रोक्स 60 है, ये हमारा 60 है. अब 60 में कौन सा रहेगा, वेस्टर्लीज. वेस्टर्लीज किस डायरेक्शन में रहती है, इस डायरेक्शन में. तो इसको हम बोलते हैं, तो ये इसके इन्फ्लुएंस में आएगी, वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में. जब ये यहां पे टच करेगी ये ऐसे जाएगी और कुछ ऐसे अंदर चली जाएंगी. जो बाइफरकेट होगा, जो हमने देखा आइलैंड की वजह से बाइफरकेट हो रहा है, वो यहाँ पे भी होगा. तो जो इधर जाएगी वो गल्फ ऑफ स्ट्रीम, ये कहां पे देख रहे हैं हम, यूएस में और यूरोप के बीच में. फिर ये इधर होते हुए यहां से कहां जाएगी, एक स्कैंडिनेवियन कंट्री में चली जाएगी. और क्या बनाएगी वहां पे जाके, ऑल वेदर पोर्ट. वाई, बिकॉज ये वार्म करंट है, ये इक्वेटर से पोल की तरफ जा रही थी ना. और कुछ इधर आ जाएगी, एक पार्ट इधर चला गया, एक पार्ट इधर चला गया, बाइफरकेट कर दिया इसने आइलैंड्स में. और यहां पे कौन सा आइलैंड है, यहां पे कैनरी आइलैंड है. यहां पे आप गूगल करेंगे कैनरी आइलैंड दिखेगा, यहां पे इस फोटो में दिख नहीं रहा है, इस पिक्चर में दिख नहीं रहा है. सो वी कैन से दीज ओशन करंट रीच Gulf of Florida, this is Gulf of Florida, and move eastward under the influence of westerlies. यहां पे westerlies हो गई, ये westerlies है हमारी. Gulf Stream hit the mid-Atlantic ridges and diverge into two different branches. One branch will move toward the Scandinavian country, जो नॉर्वे और ये फिनलैंड है ऊपर. Scandinavian country form the all-weather port, and another branch will hit कैनरी आइलैंड एंड मूव टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट करंट. नॉर्थ ईस्ट करंट हमारा कौन सा है, ये नॉर्थ ईस्ट करंट. अब ये ऐसे घूमने लग जाएगा. ये आपने देखा, ये इधर आया और ये इधर आया, तो हम इसे एक सर्कल मान लेते हैं. सो इन बिटवीन दीज ओशन करंट वी ऑब्जर्व काम वाटर. यहां पे तो काम ही रहेगा ना वाटर, ये घूम रहा है इधर, तो यहां काम हो जाएगा. सो दिस काम वाटर वी हैव सीन सरगोसा सी. तो इस काम वाटर को हम गायर बोलते हैं. ओके, टायर नहीं, गायर. तो पैसिफिक गायर क्या है हमारा, इधर होगा,
ओके, अब यहां पे क्या है, सरगोसा आइलैंड लिख देते हैं हम। आप इसकी लोकेशन देखिए गूगल करके, आपको पता चलेगा ये यहां बीचों बीच है। ठीक है, तो क्वेश्चंस कैसे बन सकता है, ये सरगोसा सी पे ये काम वाटर कैसे है, ये 15 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है मेंस में। और इस क्लाइमेटोलॉजी पे हर साल कम से कम 40 से 50 नंबर के क्वेश्चन ज्योग्राफी में आते ही आते हैं, ओनली क्लाइमेटोलॉजी पे। ओके, सो दिस इज मोस्ट रिलेवेंट पार्ट ऑफ द मेंस एग्जाम। अभी यहां पे एक सीन और है, कई बार वो बोल देता है कि कौन सी ऐसी जगह है जो फिशिंग ग्राउंड के लिए अच्छा है बट नेविगेशन के लिए अच्छे नहीं है, नेविगेशन के लिए अच्छे नहीं है। तो हम यही देखते हैं, ये गल्फ ऑफ स्ट्रीम जा रही है हमारी ऐसे। अब यहां से ईस्टर्न लीज के इन्फ्लुएंस में आके ऐसे हमारी लेब्राडोर करंट आ रही है, ये लेब्राडोर सी है। ठीक है, यहां पे क्या हो गया 90 से कौन सी आएगी हमारी, ईस्टर्लीज आएंगी। आपको पता है, आप बहुत टैलेंटेड है, अभी आपको सब आता है ऑलमोस्ट। तो यहां से ईस्टर्लीज आएंगी, तो ये क्या रहेगी, कोल्ड करंट। और ये क्या है आपकी वार्म करंट। समझ में आया। अब ये आपस में जब मिलेंगी तो दिस रीजन इज गुड फॉर फिशिंग एंड नॉट गुड फॉर नेविगेशन, बिकॉज फॉग यहां पे फॉर्म हो जाता है। अब वो कैसे होता है उसको भी देख लेते हैं। ड्यू टू कंडक्शन वार्म विल लूज एनर्जी, वो एनर्जी लूज करेगी, तो वो लूज एनर्जी करेगी तो क्या होगा, वो ठंडी होना शुरू करेगी। और वो ठंडी कब होगी, जब वो मॉइस्चर को हवा में छोड़ रही है एंड प्रेजेंट क्लाउड नियर सरफेस, वो क्या कर देगा, क्लाउड फॉर्म कर देगा सरफेस पे। अब जब उसने क्लाउड फॉर्म कर दिया तो वो मॉइस्चर के साथ मिलके क्या बन जाएगा, फॉग बन जाएगा। इसलिए वो फॉग की वजह से आपका नेविगेशन वहां पे आसान नहीं है। ओके, और फिशिंग क्यों अच्छी है वहां पे, क्योंकि वहां पे बहुत ही अच्छा आपको ग्राउंड मिल जाएगा फिशिंग के लिए, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ना टेम्परेचर है ना बहुत कम है, तो वहां पे डाइवर्सिटी आपकी अच्छी खासी होती है और वो आपकी फिशिंग के लिए भी अच्छा होता है। तो अभी आपको प्लैनेटरी विंड समझ में आ गई। ऐसे ही इसी एग्जाम्पल को हम नोट्स में देख लेते हैं। पहले इसमें देख लेते हैं, देखिए ये गल्फ स्ट्रीम है, ये राइट हैंड पे कोने में आइए, ये गल्फ स्ट्रीम है, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, ये गल्फ स्ट्रीम है, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, ये ऊपर आई ऐसे, और ये लेब्राडोर करंट है, ये वापस गए। तो ऐसे ही हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप में, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये गल्फ स्ट्रीम है, ऊपर गई, ये गई ऊपर। ये कौन सा है हमारा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। यहां पे हमारा कौन सा रहेगा, कैनरी आइलैंड से टच हुआ है तो कैनरी करंट बनेगा हमारा, ये यूरोप है आपका। और ये नॉर्थ अटलांटिक करंट है, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, ये नॉर्थ अटलांटिक करंट है। ठीक है, ये बाइफरकेट होकर किधर जा रही है, स्कैंडिनेवियन कंट्री में। ठीक है, तो आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। सेम चीज यहां पे फॉलो होगी, सेम चीज यहां पे फॉलो होगी। ये इसको भी डिस्कस कर लेते हैं सेकंड वाले को, फिर बाकी आप खुद से करना। यहां पे जापान है और यहां पे नॉर्थ अमेरिका है, देख लेते हैं इसका भी। ये नॉर्थ अमेरिका है और ये जापान है आपका। तो ये स्ट्रीम कौन सी है, कुरोशियो, और ये कैलिफोर्निया। सेम चीज आप यहां देखिए, कुरोशियो और कैलिफोर्निया करंट। ये कौन सी है, नॉर्थ इक्वेटोरियल। क्यों नॉर्थ इक्वेटोरियल है आप बताइए, क्योंकि ये 0 to 30 के रेंज में ये ऐसे आई और फिर ये ऐसे फॉर्म हुई। ये रिजेस की वजह से आपकी डायरेक्शन बदल रही है, नहीं तो यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे भी आएगी, फिर ये ऐसे फॉर्म होगी और कुरोशियो आइलैंड बनाए, कुरोशियो करंट बनाएगी। आसान है। और ये नॉर्थ पैसिफिक, ये ऐसे जाएगी और ये नॉर्थ पैसिफिक करंट बनाएगी, क्योंकि ये पैसिफिक ओशियन है। आपने सुना हुआ इंडो पैसिफिक, ये पैसिफिक, ये आपका इंडो ओशियन, ये आपका पैसिफिक ओशियन। और फिर क्या आएगा आपका, बस आपका सर्कल पूरा हो गया। अब जब ये सर्कल पूरा हो रहा होगा तो यहाँ पे भी शांत वाटर रहेगा, काम वाटर। ये कौन सा है, ये पैसिफिक गायर है जो हमने यहां देखा, ये पैसिफिक गायर बन गया।
तो बहुत आसान है, आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया उसके बाद सब कुछ हलवा है आपके लिए। मैंने ये क्यों लगाया है, क्योंकि आप स्नैपशॉट ले सकें और आपको आसानी से समझ में आ सके। ये ग्राफिक्स इसलिए नहीं लगाई मैंने क्योंकि तो क्रेडिट्स का चक्कर रहता है यूट्यूब पे, इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूं। अभी एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं, वो भी बहुत आसान है, वहां पे भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। ये नॉर्थ इक्वेटोरियल से होते हुए ये आपका अफ्रीका है और ये आपका नॉर्थ अमेरिका है। जब यहां से करंट आएगी, वाटर आएगा, तो यहाँ पे एक्यूमुलेटेड हो जाएगा और यहाँ पे ये बढ़ जाएगा। तो ईस्टर्न साइड पे, कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड पे, कॉन्टिनेंट ईस्टर्न साइड वाटर विल एक्यूमुलेटेड पाइल अप यूएन से, मतलब इकट्ठा हो जाएगा। वहां पे इकट्ठा हो जाएगा तो ये वार्म हो जाएगा और यहाँ पे कम हो गया वाटर, तो नीचे वाला वाटर ऊपर आने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे करें, यहाँ पे कूलर हो जाएगा। तो ये आसान है कॉन्सेप्ट, बट बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। वो सोचते हैं कि किसी भी पॉइंट पे ऐसा ही रहेगा, कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड पे वार्म रहेगा और कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड पे ठंडा रहेगा। ये बहुत ही गलत है। क्यों गलत है? आपने विंड पैटर्न देख लिया, ये बस ट्रॉपिकल रीजन में रहेगा 30 to 30, ये आपका इक्वेटर है, ट्रॉपिकल रीजन में रहेगा, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में ही आप वेस्टर्न पे एक्यूमुलेटेड कर रहे हैं। नहीं तो ऊपर तो आपकी वेस्टर्लीज आ रही है, ये यहाँ पे एक्यूमुलेटेड हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन से ऐसे फंसा सकते हैं आपको। ये वेस्टर्लीज है तो पानी तो यहाँ आके पाइल अप होगा ना, अगर वहां पे कॉन्टिनेंट है तो। आपको कॉन्सेप्ट आता है, आपको बस वहां पे अप्लाई करना है, ठीक है? तो आसान है ये भी। ट्रॉपिकल में क्या होगा वो भी आप जानते हैं। हमने अभी तक क्या देखा है, ईस्टर्न रीजन हमारे कोल्ड रहता है और वेस्टर्न रीजन हमारा वार्म रहता है। हमने आपका गायड देख लिया, सरगोसा सी और विंड पैटर्न से हमने कैसे हमारी ओशन करंट अफेक्ट हो रही है वो देख लिया, सैलिनिटी से कैसे अफेक्ट हो रही है वो देख लिया, कोरियोलिसिस फोर्स से कैसे हो रही है वो भी हमने देख लिया, टेम्परेचर से कैसे हो रही है वो भी देख लिया, और रिजेस या आइलैंड या कोस्ट लाइन से कैसे हो रही है हमने वो भी देख लिया। तो ओशन करंट हमने मोटा मोटा देख लिया। ये मैं क्यों ओशन करंट बीच में घुसा दिया, हम जहां पे विंड पढ़ रहे थे, क्योंकि इसी से आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। अगर ये आप छोड़ देंगे और आप डायरेक्ट विंड पैटर्न से क्लाइमेट क्लासिफिकेशन समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ डिजर्ट क्यों है, तो वो एक मगअप करना हो जाएगा, आपको रट्टाफिकेशन हो जाएगा। वो आपको रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। आपको कोई और कॉन्टिनेंट का भी एग्जाम्पल दे देंगे तो वो भी आप करते हैं, या फिर कोई भी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो आपने पढ़ी नहीं है और बट आपको कॉन्सेप्ट आता है वो वहां अप्लाई कर सकें। अब हमें बस विंड पैटर्न पढ़ना है और थोड़ा सा हम रेन के बारे में पढ़ेंगे, तो हमें सारे समझ में आ जाएंगे। एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ होता है, ग्रासलैंड कहाँ होते हैं, डिजर्ट्स कहाँ होते हैं। ओके, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ लेते हैं। ये नए लेक्चर में जाएगा तो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं ये जो वहां पढ़ाया जाए आपने, और शायद ये आपको आता भी होगा। ऑनशोर विंड आपको पता होगा, जो ओशियन से कॉन्टिनेंट की तरफ जाती है, और ऑफशोर विंड क्या है, जो कॉन्टिनेंट से मतलब सरफेस से ओशन की तरफ जाती है। अब ये ऑनशोर से आ रही हैं तो ये मॉइस्चर कंटेन करेंगी और ये ड्राई रहेंगी। अब एक थ्योरी आपने बहुत सुनी होगी, हॉर्स लैटिट्यूड। ये हॉर्स लैटिट्यूड क्या है? देखिए, जब डाइवर्ज होती थी एयर तो इट वॉज वेरी टफ टू नेविगेट योर शिप इन द मिडिवल टाइम। तो 30 पे हमारा क्या है, मैक्सिको स्टार्ट हो जाता है। तो जो स्पेन की कॉलोनीज थी ये नीचे, वेनेजुएला, कोलंबिया, जो भी उसकी मैक्सिको तो थी, तो वो ये सब यहाँ पे अपनी शिप्स को लैंड कराते थे और यहां से वो हॉर्स को ले जाते थे यहां से, क्योंकि इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू नेविगेट विद द हैवी वेट। ओके, सो दिस इज नथिंग अ कॉन्सेप्ट, इज अ थ्योरी गिवन बाय द हिस्टोरियंस। दिस इज अ हॉर्स लैटिट्यूड। और मॉइस्चर क्या कॉन्सेप्ट है, अगर वो ओशन से आ रहा है मॉइस्चर लेके तो वहां पे रेनफॉल रहेगा आपका। ओके, वो वहां पे आएगा सरफेस पे और रेनफॉल के लिए होगा। और ड्राई में क्या रहेगा, नो रेनफॉल। क्यों? क्योंकि वहां पे मॉइस्चर नहीं है।
ठीक है। तो डेजर्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, वहां पे जहाँ पे भी मॉइस्चर नहीं होता है और ड्राई एयर होती है, वहां पे आपके डेजर्ट फॉर्म हो जाते हैं। डेजर्ट के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, आप चिंता मत कीजिए। इन्हीं कॉन्सेप्ट से आपने कॉन्सेप्ट जो सीखने थे वो आप सीख चुके हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर नाउ। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ। यू विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हम विंड पैटर्न पढ़ेंगे, फिर विंड पैटर्न के बाद हम सारी क्लाइमेट कंडीशंस पढ़ लेंगे, हर तरीके की, ग्रासलैंड और डेजर्ट और एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो भी होगा वो हम सब पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ओके।